CBSE Mathematics Class 12 Exercise 4.2 Question number 8. By using the properties of the determinant in exercise question number 8 to 14, so that question number 8 first part, that is determinant is given, that is 1a square, 1b square, 1c square. We have to prove that it is equal to the a minus b into b minus c into c minus a. So what operation we have taken here? R1 undergoes the operation, that is R1 minus R2, and R2 goes R2 minus R3. So here if you just subtract, you will get R1 minus R2 means 1 minus 1, that is 0, a minus b, a square minus b square. Similarly, R2 minus R3, that is 1 minus 1, 0, here b minus c, b minus c, b square minus c square, and the row 3 will remain as it is. There will be no any change in the row 3. Now take common a minus b from R1 and b minus c from R2. So our delta, or you can say determinant, will be a minus b बाहर आ गया है, b minus c आ गया है. So here we are left 1 and 1 here. यहाँ पर a plus b, b minus b plus c. देखिए 0 0 1 1 a plus b, b plus c. और third row as it is. Now expanding with the first column. First column में क्योंकि 2 0 है, so with the help of the first column we will start expanding. You see a minus b and b minus c is already out. So while expanding it, you see minus 1 raised to power 3 plus 1, because third row and first column. So 3 plus 1, तो 1 हो जाएगा into 1 में लेंगे तो देखिए ये रो और ये कॉलम क्लोज हो जाएगा. We'll multiply this left to down, means 1 into b plus c, 1 into a plus b माइनस के साथ, माइनस 1 a plus b. देखिए यहाँ पर लिखा मैंने 1 into b plus c minus, while we are multiplying left to up, means cross multiplication left to up, at that time we have to put negative sign here. So it will be minus 1 into a plus b. See here, the a minus b, b minus c. After solving, we will get here c minus a. So our result is a minus b, b minus c, c minus a, and it is your right hand side which is given, and hence it is proved. Now come to the question number 8, second part. Second part, delta, or you can say determinant, 1 1 1 a b c, a cube, b cube, c cube. We have to prove it, that it is equal to a minus b, b minus c, c minus a into a plus b plus c. So what operation we are going to do? The column. You see, column C1 minus C2, and C2 under the operation, that will be C2 minus C3. Here it should be now you see that determinant, while we are subtracting C1 minus C2, 1 minus 1, 0, a minus b, a cube minus b cube. Similarly for C2 also, 1 minus 1 is 0, here b minus c, b cube minus c cube, and the third column will remain as it is. Taking common a minus b from C1 and b minus c from C2. So a minus b बाहर निकाल दिया कॉलम से. देखिए इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा.
और यहाँ पर b माइनस सी यहाँ से कॉमन ले लिया. So we are left with 0, 0, 1, 1, 1, c. Here it is a square plus b square plus ab. क्योंकि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. तो हमने लिख दिया है क्योंकि a माइनस बी तो बाहर निकल गया है. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. Similarly, in the column 2, we will get here b cube minus c cube है, तो b square plus c square plus bc and c cube as it is. There will be no change in the third column. Now you see, after solving, now on expanding wide R1, रो 1 के अनुसार हमने इसको एक्सपेंड किया है. v है, देखिए क्योंकि 2 जीरो है रो में, इसलिए हमने फॉर आवर ओन कन्वीनियंट वी हैव एक्सपेंडेड विद द हेल्प ऑफ रो 1. सो a माइनस बी बी माइनस सी. अब देखिए रो 1 से हम इसके लिए करना है, तो क्या करेंगे, इस रो को और इस कॉलम को कवर करेंगे. इसके अलावा जो है देखिए 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा. लेफ्ट टू डाउन, लेफ्ट टू अप. लेफ्ट टू अप में हमेशा नेगेटिव साइन लगाना है. देखिए इधर 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ये लिख दिया एज इट इज. अब इधर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम माइनस डालेंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी. अब देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर पॉजिटिव है, बी स्क्वायर नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा. अब वी विल गेट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. हियर you take b common, inside the bracket you will get c minus a. Now from here you can see c minus a and c minus a, you can take common. Here we are left with c plus a and b this one. So inside the bracket we will get a plus b plus c. Now you see the hence the delta or determinant is equal to a minus b, b minus c, c minus a and a plus b plus c, which is our right hand side, hence proved. Right hand side यहाँ पर है देखिए, hence it is proved. Now come to the question number 9. That delta is equal to x square, y z, y square, zx, z square, xy. We have to prove it. That it is equal to x minus y, y minus z, z minus x. In the fourth bracket, that is xy plus yz plus zx. So applying the row 1, so row 1 minus row 2. रो 1 में से रो 2 माइनस कर दीजिए. देखिए x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई जेड माइनस जेड एक्स. सिमिलरली रो 2 में से रो 3 माइनस कर दीजिए, y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड एक्स माइनस एक्स वाई. ये देखिए कर दिया है. अब देखिए यहाँ पर एक्स माइनस वाई है, इधर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ से भी हमारे को कॉमन निकलेगा. नाउ टेकिंग कॉमन एक्स माइनस वाई फ्रॉम द रो 1 and y minus z from the row 2, we will get here x minus y, y minus z. So here we are left with 1 1 z. Here we are having x plus y, y plus z. Here we will get minus z and minus x. क्योंकि हमने क्या निकाला है कॉमन, यहाँ से हमने एक्स वाई यहाँ से निकाला है, एक्स माइनस वाई निकाला है, तो उस समय माइनस जेड रहेगा, यहाँ पर माइनस एक्स. नाउ द रो 1 विल बी अंडर ऑपरेशन, दैट इज रो 1 माइनस रो 2. अब रो 1 में से रो 2 माइनस कीजिए, तो 1 माइनस 1 0. इसको जब माइनस करेंगे तो वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस जेड आ जाएगा. हियर
minus z minus x, so that will be equal to x minus z. So 1 and y plus z minus x. Again taking common zx, z minus x from row 1. z minus x हम रो 1 से लेंगे कॉमन, क्योंकि एक साइक्लिक ऑर्डर होता है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स. सो दैट इज वाई आई हैव रिटन हियर द z माइनस एक्स. जब z माइनस एक्स लेंगे तो यहाँ पर -1 रह जाएगा, यहाँ पर भी -1 रह जाएगा. देखिए हमने z माइनस एक्स बाहर निकाल लिया, तो 0 -1 -1 1 y plus z minus x, z square xy. Now expanding along R1, रो 1 के मदद से हम इसको एक्सपेंड करेंगे. और ये कॉमन फैक्टर ले लिया हमने, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स. अब देखिए यहाँ पर माइनस है, एक माइनस होगा, क्यों? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है, तो 1 + 2 दैट इज 3. द ऑड नंबर है, that is why I have put minus into -1. inside the bracket I have written, देखिए ये 1 का इधर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमारे को फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को टच नहीं करना है. अब हमारे को ये 1 है और ये xy है, तो इसका मल्टीप्लाई किया 1 into xy. अब इस तरह देखिए z का मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम? -x में. तो जब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये जो माइनस है प्लस हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट टू अप जा रहे हैं, तो एक माइनस लगाएंगे. देखिए इधर -x into z, ये हो गया. अब इसके लिए देखिए ये जो है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो को छोड़ दीजिए और थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए, इनका मल्टीप्लाई कीजिए. 2/2 का डिटर्मिनेंट जो मिला है, सो 1 देखिए -1 लिखा हूँ, ये -1 है यहाँ. 1 into z square, 1 into z square माइनस लगाएंगे, -z का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो क्या मिलेगा हमारे को? -yz minus z square. अब ये z square प्लस का है और ये z square माइनस का है, बोथ विल बी कैंसिल्ड. So we are left here x minus y, y minus z, z minus x. Inside the bracket we have got x, y, z, x, z and y, z. This is equal to the right hand side, hence it is proved. Now the same question number 9 has been done by me by the second method. You can follow this method. Same question is here. The delta x square yz, y square zx, z square xy. We have to prove that it is equal to x minus y minus z, z minus x. In the fourth bracket, that is xy, yz plus zx. So multiplying row 1, row 2, row 3 by x, y, z respectively. जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही हम डिवाइड करेंगे बाहर. देखिए अगर हमने इसको x से मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड कर दिया 1/x, इसको y से मल्टीप्लाई किया तो 1/y, इसको z से मल्टीप्लाई किया है तो 1/z. जैसे ही मल्टीप्लाई किया, देखिए थर्ड कॉलम में हमारे को क्या मिला? xyz, xyz. Now you can take common. Here you are getting x square x cube, y square y cube, z square z cube. xyz is common, you can take it common. Now taking common from C3 से मीन कॉलम 3 से आप कॉमन लेंगे. जब कॉमन लेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा. Now our determinant has been reduced to x square x cube 1, y square y cube 1, z square z cube 1. So now applying
रो वन माइनस रो टू, और रो टू माइनस रो थ्री। तो देखिए इधर रो वन माइनस रो टू, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, and 1 minus 1 0. Here y square minus z square, y cube minus z cube is equal to 0. Now we taking common, x minus y common लिया हमने from रो 1 और y minus z हमने रो 2 से कॉमन लिया। देखिए यहाँ से दोनों जगह से, यहाँ पर 0 0 है, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। So we have got here that is delta x minus y, y minus z. Inside the bracket we are having x plus y, x square plus y square plus xy. ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है, तो उसमें एक फैक्टर तो बाहर निकाल दिया, दूसरा फैक्टर रह गया इधर। सिमिलरली y क्यूब माइनस जेड क्यूब में हमने एक फैक्टर तो बाहर निकाल दिया और दूसरा फैक्टर यहाँ पर रह गया। इधर y प्लस जेड और यहाँ x प्लस वाई, जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1। अप्लाइंग R2 माइनस R1। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, रो 2 में से रो 1 को माइनस करेंगे। चलिए माइनस कीजिए। देखिए अब रो 1 एज इट इज लिख दिया मैंने और रो 3 भी एज इट इज लिख दिया। केवल हमारे को ऑपरेशन करना है, रो 2 में से रो 1 माइनस करना है। तो y और y कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट हियर z माइनस x। हियर वी विल गेट z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस y इन ब्रैकेट z माइनस x। अब देखो, नाउ टेकिंग कॉमन z माइनस एक्स फ्रॉम रो 2 से देखिए z माइनस एक्स कॉमन निकल रहा है, हमने लिख दिया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लिखा मैंने कॉमन लेकर के x माइनस वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। नाउ वी आर हैविंग x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई 0 1, z प्लस एक्स प्लस वाई 0, जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1। सॉरी, अब इसको सॉल्व किया मैंने। देखिए जो फैक्टर कॉमन फैक्टर है वो यहाँ पर लिख दिया। इसको हमने एक्सपेंडिंग अलोंग C3, इसको एक्सपेंड किस तरह से, C3 से किया सर। अब देखिए थर्ड रो है, थर्ड कॉलम है, तो थर्ड रो को छोड़ दीजिए और थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए, बचा हुआ जो एलिमेंट है उसका मल्टीप्लाई कीजिए लेफ्ट टू डाउन। x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये मैंने लिख दिया इधर। अभी देखिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस जाएगा, तो दैट इज वाई आई हैव रिटन हियर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसको मल्टीप्लाई किया फर्दर, so we will get here x square y square plus 2xy. Here you will get zx plus zy minus x square minus y square minus xy. अब देखिए ये x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जो बचा है उसको हमने लिख दिया इधर। देखिए x माइनस वाई, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एंड इट इज योर राइट हैंड साइड, hence prove. That's all.